Hello students, welcome back to Abhigyan Academy. So in today's video, we will be continuing the discussion on the Union Legislature. If you guys check my earlier part 1 video on the Union Legislature, you will get an idea about what the Union Legislature is, what does it comprise of, who are the MPs, what are the privileges they have, who are the officers of the Parliament, uh, Parliament के parts क्या-क्या है, the Article 79, and various other basic topics or concepts that have been created. So in today's part 2, we will be continuing with Union Legislature, and firstly we'll talk about bills. Now what are bills? Alright, what are bills? We studied in part 1 that whenever there is an adjournment of the house or prorogation of the house, bills, motions, resolutions, they relapse. In some cases they don't relapse. Now what are bills? Okay? What are bills? See, whenever a law has to be made in the country, what is the work of the Union Legislature? The work or the function of the Union Legislature is to make laws for the Union as in for the whole country at a central level. ठीक है? The job of the Union Legislature is to make laws. ठीक है? अब अगर एक लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, तो उस लॉ का एक ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रपोज करना पड़ेगा. That yes, these are a set of proposals, and if they are passed in the parliament, it will be made a law. ठीक है? Now, so what are bills? Bills are nothing but a set of proposals. The set of proposals that are proposed to the parliament, and if the bill passes in the parliament, the bill becomes an act. And what is an act? An act is nothing but a law. एक कानून होता है. ठीक है? So let's have a look. अब we have something called ordinary bill. देखो, firstly understand there are bills, कुछ special type के bills होते हैं, जैसे money bill. Money bill basically deals with matters that are related to somewhat finances. ठीक है? मनी रिलेटेड मैटर्स होता है, टैक्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सब का मैटर होता है मनी बिल. देन वी हैव फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल गवर्नमेंट यूज करता है फॉर पर्पसेस लाइक फाइनेंसिंग द स्टेट्स, ग्रांट्स टू द स्टेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या ग्रांट्स देगा, उससे क्या क्या लोन देगा, उसको लोन में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऑल दैट. देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो लिखा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कोई अमेंडमेंट करना है, then for amending the constitution there is a special type of bill known as the constitutional amendment bill. ये जो तीन टाइप के बिल्स है स्पेशल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अमेंडमेंट बिल, इन तीनों बिल को छोड़ के बाकी अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, दैट काइंड ऑफ, मतलब ये तो स्पेशल टाइप के बिल्स हो गए. इन स्पेशल टाइप के बिल्स को अगर मैं हटा भी दूं, तो इन सबको हटा के जो नॉर्मल बिल्स बच जाते हैं, आउट ऑफ दीज थ्री, दोज बिल्स आर नोन एज ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है? अब बिल्स डिपेंडिंग अपॉन कि बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो दो टाइप के बिल्स होते हैं. अगर उस बिल को कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, लाइक सी ऑल एमपीज आर नॉट मिनिस्टर्स. ठीक है? ऑल एमपीज आर नॉट मिनिस्टर. जैसे बिजुली कलिता मेथी, शी इज एन एमपी फ्रॉम गुवाहाटी, शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा, बट शी इज नॉट अ मिनिस्टर. शी इज नॉट अ मिनिस्टर. ठीक है? राहुल गांधी, ही इज एन एमपी. मिस्टर राहुल गांधी इज एन एमपी. ठीक है? ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम वायनाड. ठीक है? एंड he is a member of the parliament in the Lok Sabha, but he's not a minister. ठीक है? But on the other hand, if I look at Rajnath Singh, he's an MP and he's a minister, he's a defense minister. Amit Shah, he is a minister, he's the home minister, he's an MP, he's also a minister. So all ministers are MPs only, but all MPs are not ministers. Mr. Narendra Modi, he was elected from Varanasi, the Lok Sabha. Now he is a prime minister of India, he's a minister. ठीक है? तो नाउ अगर बिल को कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, if the bill is introduced in the parliament by a minister, then the bill is called a government bill. और अगर कोई नॉन मिनिस्टर एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है, it is called as a private member bill. For example, Shashi Tharoor. If Shashi Tharoor introduces a bill, now Shashi Tharoor is an MP, but Shashi Tharoor is not a minister in the government. So such kind of a bill, if Shashi Tharoor introduces it, for example, it will be called as a private member bill. अगर कल अमित शाह कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ना अमित शाह इज अ मिनिस्टर, इज द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर. सो इफ ही इंट्रोड्यूसेस अ बिल, इट विल बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट बिल. नाउ जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं,
मतलब मनी बिल, फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़ के जो बाकी नॉर्मल बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स को तुम पहले लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उनको देखो, बिल का ऐसा होता है कि बिल को अगर एक्ट बनना है, द बिल हैज टू पास इन द लोकसभा, द राज्यसभा, बोथ द हाउसेस, and then it has to be signed by the president. It is called presidential assent. Now the fun part here is that कोई पर्टिकुलर अगर अगर मनी बिल, फाइनेंस बिल या अमेंडमेंट बिल नहीं है, अगर ये एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल का ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और लाइक इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा ओनली। Ordinary bill can be introduced in either of the two houses first. It can be introduced first in Lok Sabha also. It can be introduced first in Rajya Sabha also. Now let's look at the passage of bill. ठीक है, कि bill pass कैसे होता है? Let's have a look at the passage of bill. Let's take an example of Lok Sabha. Let's take an example that the bill that we are talking about, it is an ordinary bill, and as I said earlier, ordinary bill can be introduced first in the Lok Sabha as well. It can be introduced first in the Rajya Sabha as well. ठीक है? In this example, let's assume that it's an ordinary bill, and let's assume that it is being introduced in the Lok Sabha first. Although it can be introduced in the Rajya Sabha as well, but मैं example में मान ले रहा हूं कि सबसे पहले लोक सभा में इंट्रोड्यूस। What is the first step? The stage one is the first reading of the bill. First reading में क्या होता है कि जो भी MP, whether it's a private member or it's a minister, the MP will first seek the permission of the speaker. क्योंकि स्पीकर क्या है? स्पीकर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका परमिशन लेके ही द एमपी कैन इंट्रोड्यूस द बिल। एमपी स्पीकर से परमिशन लेगा, एंड यूजुअली द स्पीकर ग्रांट्स द परमिशन। इट्स वेरी वेरी रेयर कि स्पीकर परमिशन ग्रांट ना करे, ठीक है। और अगर मान लो स्पीकर ने परमिशन नहीं दिया, स्पीकर ने परमिशन नहीं दिया कि नहीं तुम ये बिल नहीं बोल सकते, इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट जो एमपी है उसको लग रहा है कि नहीं भाई स्पीकर गलत कर रहा है, मुझे तो इंट्रोड्यूस करना है। इन दैट केस क्या होगा? एक वोटिंग होगा पार्लियामेंट, एक वोटिंग होगा कि वेदर द बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और नॉट, एंड इसमें सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगा। इन यस्टरडेज क्लास आई स्पोक अबाउट सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। इफ यू सी द फर्स्ट वीडियो यू विल नो व्हाट दीस मेजोरिटीज आर। तो अब होता क्या है कि मान लो बाई चांस स्पीकर ने बोल दिया कि मैं बिल इंट्रोड्यूस करने नहीं दूंगा, इन दैट केस एक वोटिंग होता है, ठीक है। और अगर वोटिंग में सिंपल मेजोरिटी में हाँ मिल जाता है तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, सिंपल मेजोरिटी अगर नहीं मिलता है तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब होगा क्या? जब बिल फर्स्ट क्या होगा, बिल को फर्स्ट टाइम टेबल किया जाएगा, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जाएगा उसको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द बिल इज, एक इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया जाएगा उसके साथ। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि पहले स्पीकर का परमिशन लो, स्पीकर परमिशन अगर ना दे बाई चांस तो सिंपल मेजोरिटी वोटिंग करा लो, मेजोरिटी मिले तो ठीक, नहीं तो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देना पड़ेगा कि व्हाट इज द बिल अबाउट, एक इंट्रोडक्शन बेसिकली, एंड देन द बिल इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सामने वो रखा जाएगा सबके सामने, ताकि सब उसको देख पाए, पढ़ पाए। एंड उसके बाद क्या होगा, हमारे देश का जो गैजेट है, गैजेट इज नथिंग बट इट्स लाइक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पे जो भी पार्लियामेंट में सरकार काम कर रही है, सरकार की सारी चीजें गैजेट में पब्लिश होती है, ठीक है। तो गैजेट में बिल को नोट किया जाएगा और बिल को पब्लिश किया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट रीडिंग, स्टेज वन। नाउ कमिंग टू स्टेज टू, द सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में बिल स्क्रूटिनी होता है, द बिल इज लाइक थरोली स्क्रूटिनाइज्ड। नाउ व्हाट डज स्क्रूटिनी और स्क्रूटिनाइजेशन मीन? किसी चीज को स्क्रूटिनी करना मतलब उसको डिटेल में चेक करना और दोबारा रीचेक करना कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, कहां करेक्शन हो सकता है, कहां सब कुछ ठीक है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मीन्स to see something thoroughly, to go through something thoroughly, and to make sure that everything is fine. अब after the bill is scrutinized, उसके बाद बिल के स्क्रूटिनी के बाद सेकेंड रीडिंग में चार ऑप्शन बचते। देयर आर फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट की बिल का करना क्या, ठीक है। स्क्रूटिनी के बाद या तो द पार्लियामेंट कैन टेक अप द बिल इमीडिएटली, स्क्रूटिनी हो गया, चलो लेट्स इमीडिएटली टेक अप द बिल, और उस पर वोटिंग चालू कर देते हैं कि बिल पास होगा या नहीं, ठीक है। और नहीं तो उस दिन
टेकअप नहीं करके एक दूसरा डेट देना कि चलो आज स्क्रूटिनी हो गया, हम 2 दिन बाद बिल को टेकअप करेंगे वोटिंग के। ये पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल को एक ज्वाइंट कमेटी को रेफर करो। ज्वाइंट कमेटी मतलब एक ऐसा कमेटी, ज्वाइंट ज्वाइंट मीन्स साथ में, राइट। तो ज्वाइंट कमेटी मतलब एक ऐसा कमेटी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। ज्वाइंट कमेटी को रेफर करते हैं टू सी कि बिल में सब ठीक है या नहीं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि बिल को एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दो। सिलेक्ट कमेटी एक ऐसा कमेटी होता है, अब सिलेक्ट सिलेक्ट मतलब कुछ ही लोग, तो सिलेक्ट कमेटी इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिलेक्ट कमेटी हैज मेंबर्स ओनली फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है, इट हैज मेंबर्स ओनली फ्रॉम द लोकसभा। एंड लास्टली द अनदर ऑप्शन, द फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल टू द पार्लियामेंट इज दैट कि पब्लिक ओपिनियन के लिए छोड़ दो, कि ये कि जो हम जैसे कॉमन लोग है, कॉमन पब्लिक है, हमारे ओपिनियन के लिए ओपन कर दो कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो हमसे जानेंगे, वी विल टेल देम। नाउ हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमने एग्जांपल में अज्यूम ये किया था कि मान लेते हैं बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड रीडिंग लोकसभा में सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर मान लो बिल लोकसभा में पास हो गया। अब लोकसभा में पास होने के बाद बिल थर्ड रीडिंग होगा। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, द बिल विल गो टू द राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा के पास भी चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा भी उस बिल को पास कर देगा। अगर राज्यसभा ने बिल पास कर दिया तो दोनों हाउसेस से पास हो गया, द बिल विल गो ऑन फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, कि प्रेसिडेंट साइन करे उस पर। अगर वो ना हुआ तो दूसरा ऑप्शन ये है कि राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर देगा, कि राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा हो गया देन देयर विल बी डेडलॉक, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने नहीं किया, डेडलॉक हो गया, ठीक है। एंड वी स्टडीड यस्टरडे दैट इन केस देयर इज अ डेडलॉक, इन केस देयर इज अ डेडलॉक, उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कन्वीन करता है, ताकि दोनों हाउसेस साथ में बैठ के या तो बिल को पास कर दे या खत्म कर दे। थर्ड ऑप्शन इज कि राज्यसभा बिल को पास तो कर देगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ पास करेगा, कुछ चेंजेस के साथ पास करेगा। राज्यसभा बोलेगा ठीक है, राज्यसभा लोकसभा को बोलेगा ठीक है मैं बिल पास कर रहा हूं, बट मैं अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करके पास कर रहा हूं। तो चेंजेस करने के बाद क्या होगा, वो जो चेंज किया है राज्यसभा ने, वो चेंज जब वापस लोकसभा के पास जाएगा, और जो भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को लोकसभा को फिर से पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर लोकसभा ने चेंजेस को पास कर दिया तो वेल एंड गुड, और अगर लोकसभा ने बोला कि नहीं, राज्यसभा ने जो चेंजेस किए हैं मुझे वो चेंजेस पसंद नहीं, मैं पास नहीं करूंगा, इन दैट केस अगेन फिर से डेडलॉक हो जाएगा, कि दोनों हाउसेस एग्री नहीं कर रहे। इन दैट केस प्रेसिडेंट को फिर से ज्वाइंट सेशन करवाना पड़ेगा। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट कि अगर डेडलॉक हो गया, बिल को राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर राज्यसभा ने चेंजेस सजेस्ट करके लोकसभा को भेजा, लेकिन लोकसभा ने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर देयर इज अ डेडलॉक, देन प्रेसिडेंट विल कॉल ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सारे मेंबर्स आके एक जगह बैठेंगे इन अ ज्वाइंट सिटिंग, एंड वहां पे या तो ये लोग बिल को डिस्कस करके पास कर देंगे या फिर बिल को खारिज कर देंगे। हम देखते हैं कि ज्वाइंट सेशन होता क्या है। ज्वाइंट सेशन एज आई सेड, ज्वाइंट सेशन को कन्वीन कौन करता है, कन्वीन एज इन उस सेशन को बुलाता कौन है एक जगह पे, इट इज कन्वीन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन बैठता है ज्वाइंट सेशन में, दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स एक जगह एक साथ बैठते हैं, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। और ज्वाइंट सेशन में जब वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, ज्वाइंट सेशन पे उस बिल पे सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग हो, ठीक है। कि अगर ज्वाइंट सेशन में जब राज्यसभा लोकसभा साथ में बैठ जाएंगे, ज्वाइंट सेशन में अगर सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग मिल जाता है उस बिल को, देन द बिल विल पास, अदरवाइज otherwise the bill will cease to exist. और now the question is कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब दोनों हाउसेस साथ में आके बैठेंगे तब उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो इसका एक प्रेफरेंस ऑर्डर, जो ज्वाइंट सेशन है, द ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करने का पहला चॉइस इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, और अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में इट विल बी
प्रिसाइडेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और मान लो कि डेप्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंट है, then in that case the third priority or the third option to preside over the joint session is the deputy chairman of Rajya Sabha, ठीक है। और मान लो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तीनों के तीनों एब्सेंट है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ज्वाइंट सेशन में जितने भी लोग बैठे रहेंगे साथ में, वो लोग आपस में मेजोरिटी से एक बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि तुम जाओ जाके ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करो। नाउ यू विल थिंक व्हाट अबाउट द चेयरमैन? द चेयरमैन इज नॉट इन्वॉल्व, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट एन ऑप्शन टू प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सेशन। वाइस प्रेसिडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ज्वाइंट सेशन, प्लीज रिमेंबर। अब जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तो ज्वाइंट सिटिंग में बिल्स का अमेंडमेंट कैसे होता है? मान लो लोकसभा ने एक बिल बनाया था, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा को पसंद नहीं आया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया या राज्यसभा ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट नाउ बोथ ऑफ देम हैव कम इन द ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन में आने के बाद बिल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे चेंज हो सकता है। अब देखो, दोनों हाउसेस के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट तो हुआ होगा जिसके वजह से वो ज्वाइंट सिटिंग हुआ। अब ये दोनों हाउसेस के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स उस बिल में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, है ना? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग हुआ क्यों? व्हाई डिड द ज्वाइंट सिटिंग टेक प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस? The joint sitting happened in the first place because of the very reason that there was a disagreement between both the houses, right? So now ज्वाइंट सिटिंग जिन कारणों की वजह से हुआ है, उन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बिल में चेंजेस हो सकते हैं कि चलो ये चेंजेस कर देते हैं, दोनों हाउसेस आपस में मिटमाट कर लेते हैं, बिल को पास कर देते हैं। और दूसरा ये कि मान लो ये एक हाउस में पास होता है, दूसरा हाउस में रिजेक्ट होता है, वो चेंज करने बोलता है, वो मना करता है, वो आर्गू करता है, फिर ज्वाइंट सिटिंग बैठता है। अब देखो, जब तक ये बिल इंट्रोड्यूस होगा और जब तक वो ज्वाइंट सिटिंग आएगा, इन दोनों इवेंट्स के बीच में काफी टाइम बीत चुका होता है। और ये जो डिले हुआ, डिले होने के कारण क्या होता है, कभी कभी लोगों की जरूरतें बदल जाती है उस टाइम। तो इस डिले को एकोमोडेट करने के लिए अगर कुछ चेंजेस करना पड़े, दोस अमेंडमेंट्स आल्सो हैपन इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बिल। नाउ लेट्स कम टू द मनी बिल। मनी बिल क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल है। अब मनी बिल कहां मेंशन्ड है? मनी बिल इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब है क्या, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में कुछ कुछ मनी मैटर्स मेंशन्ड है। और अगर पार्लियामेंट का कोई भी बिल आर्टिकल 110 के मनी मैटर से रिलेटेड हो, देन सच अ बिल इज टर्म्ड एज अ मनी बिल, ठीक है। नाउ मनी बिल का एक स्पेशल चीज है। ऑर्डिनरी बिल का क्या था? ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा आल्सो, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा आल्सो, बट मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मनी बिल कैन ओनली एंड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, राज्यसभा का रोल नहीं है मनी बिल, ठीक है। ये बेसिकली लोकसभा का एक स्पेशल पावर बोल सकते हो, ठीक है। मनी बिल में लोकसभा का ये एक स्पेशल पावर। अब उसके बाद मान लो कि, अब मैं एग्जांपल देता हूं, देयर इज बीजेपी एंड देयर इज कांग्रेस इन द पार्लियामेंट। बीजेपी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया और बीजेपी ने बोला कि ये जो हमने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वी थिंक दैट दिस बिल इज समवॉट रिलेटेड टू वन ऑफ द मनी मैटर्स दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। हम जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है इस बिल में जो भी लिखा है ये आर्टिकल 110 के किसी एक मनी मैटर से रिलेटेड, तो ये मनी बिल, ये मान लो बीजेपी ने। उधर से कांग्रेस ने आर्ग्यू किया दैट नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, ये एक मनी बिल नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी बिल। तो क्या होगा? डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। डिस्प्यूट हो गया कि मनी बिल है या नहीं। इन दैट केस डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होता है? इस डिस्प्यूट का डिसीजन पूरा का पूरा स्पीकर के मर्जी पे होता है। ये डिस्प्यूट स्पीकर के सामने रखा जाता है and it depends on the final decision of the speaker. If the speaker says that this bill is a money bill, then it will be a money bill. If the speaker says this is not a money bill, then it will not be called considered as a money bill. ठीक है, ये स्पीकर का डिसीजन है अगर डिस्प्यूट होता है तो। और मनी बिल पे वोटिंग कैसे होता है? मनी बिल पे वोटिंग सिंपल मेजोरिटी से होता है, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं चाहिए उसकी।
ठीक है। अब मनी बिल क्या है? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में हो नहीं सकता। तो मनी बिल को पहले लोकसभा में पास होना पड़ेगा। अब मान लो मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो जाता है, तो लोकसभा से पास होकर मनी बिल जाएगा राज्यसभा। ना अगर ऑर्डिनरी बिल में क्या है? ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा के पास पावर्स है कि राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर सकता है, राज्यसभा चेंजेस डिमांड कर सकता है कि हम चेंजेस कर रहे हैं, लोकसभा को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या राज्यसभा डेडलॉक क्रिएट कर सकता है, नहीं हमें ज्वाइंट सेशन चाहिए। बट मनी बिल के केस में राज्यसभा डज नॉट हैव दीज पावर्स। मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और मनी बिल में राज्यसभा कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकता, राज्यसभा कोई चेंजेस नहीं कर सकता है मनी बिल। हाँ, अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा लोकसभा को रेकमेंड कर सकता है कि हमें लगता है इस मनी बिल में ये चेंजेस जरूरी है, काइंडली डू दिस चेंजेस इन द मनी बिल। बट हियर अगेन, राज्यसभा लोकसभा को जो भी एडवाइस या रिकमेंडेशन देगा, इट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द लोकसभा टू फॉलो। लोकसभा अगर चाहे तो राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, लोकसभा चाहे तो उनके रिकमेंडेशंस को नकार भी सकती है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मान लो राज्यसभा ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, राज्यसभा ने चेंजेस को रिकमेंड किया और लोकसभा ने बोला कि नहीं मेरा मर्जी नहीं है, मैं नहीं करूंगा चेंज, और वापस राज्यसभा को दे दिया, और राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं कर रहा है। उस टाइम क्या होगा कि वो बिल 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहेगा, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स, 14 डेज। एंड इफ विद इन 14 डेज राज्यसभा इफ इट डज नॉट पास द मनी बिल, तो 14 डेज बाद ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाएगा। सो बेसिकली मनी बिल का फंडा ये है, मोटा मोटा मीनिंग यही है दैट मनी बिल में 100% पावर लोकसभा का है, मनी बिल में राज्यसभा का कोई पावर नहीं, इट इज पावरलेस। फाइनेंशियल बिल्स, अब फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं? ऐसे बिल्स जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए मनी मैटर से रिलेटेड हो, और आर्टिकल 117 में लिखे हुए नॉन मनी मैटर से भी रिलेटेड हो, ठीक है। इफ देयर इज एनी बिल विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117, देन सच अ बिल इज नोन एज फाइनेंस बिल। नाउ फाइनेंस बिल में ये है कि फाइनेंस बिल भी ऐसा बिल है जिसको तुम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फाइनेंशियल बिल इज ऑल्सो अनदर बिल लाइक मनी बिल विच कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। एंड हाउ? इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर लोकसभा में किसी को फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको पहले प्रेसिडेंट का रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल पे भी लोकसभा में वोटिंग होता है। कैसे वोटिंग होता है? बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर सिंपल मेजोरिटी मिल गया तो बिल पास हो जाए, और अगर लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है, दिस बिल विल बी सेंट टू द राज्यसभा। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल बिल्स के केस में राज्यसभा का इक्वल पावर है, जो राज्यसभा का ऑर्डिनरी बिल में होगा, ठीक है। राज्यसभा चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, या फिर लोकसभा को कुछ चेंजेस करने बोल सकता है, एंड दोस चेंजेस विल बी बाइंडिंग, ठीक है। अगर लोकसभा चेंज नहीं करेगा तो डेडलॉक हो जाएगा। एंड अगेन, अगर दोनों हाउस, अगर फाइनेंशियल बिल है और फाइनेंशियल बिल को लेकर दोनों हाउसेस के बीच में अगर बाई चांस डेडलॉक हो भी जाता है, देन व्हाट हैपेंस? द प्रेसिडेंट विल कॉल अ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब एक बात याद रखना, मनी बिल क्या होता है? मनी बिल इज अ बिल विच इज कंसर्न विद मैटर्स इन आर्टिकल 110, एंड फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स which are concerned with matters in article 110 and also 117. So what can we say? We can say कि देखो, जो भी मनी बिल होता है वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बिल भी होगा, क्योंकि फाइनेंशियल बिल ऑल्सो डील्स विद आर्टिकल 110। अगर कोई चीज आर्टिकल 117 से रिलेटेड है तो वो फाइनेंशियल बिल तो है, बट मनी बिल नहीं है। व्हाई? बिकॉज मनी बिल इज ओनली रिलेटेड टू आर्टिकल 110। सो व्हाट वी कैन से इज दैट every financial bill is not a money bill, but every money bill is a financial bill. Now let's come to presidential assent. Now what is presidential assent? Understand this. ये जो हमने अभी तक बिल्स के बारे में पढ़ा, what did we study about bills? What did we study about bills? What we studied about bills is simply the fact that bills क्या है? Bills are nothing but they are passed by both the houses and then they are sent to the president कि president उस पर साइन करे. This is known as the presidential assent.
अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस क्या होते हैं? मान लो लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, या फिर पहले राज्यसभा में पास हुआ फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर ये प्रेसिडेंट के पास गया। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट। आइदर द प्रेसिडेंट कैन साइन, कि बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, उसने साइन कर दिया, और द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड द कंसेंट, विथहोल्ड की मैं साइन नहीं करूंगा, मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूं साइन करने को, उसने विथहोल्ड कर लिया, ठीक है। बट ये चीज प्रेसिडेंट सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के साथ कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल्स के साथ प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट या तो साइन कर देगा, या फिर प्रेसिडेंट बोलेगा कि मैं साइन नहीं करूंगा और वो पार्लियामेंट को लौटा देगा। बट मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं। अगर प्रेसिडेंट के पास मनी बिल आता है लोकसभा से पास होके, और राज्यसभा में तो ऑटोमेटिकली पास हो ही जाएगा, बिकॉज राज्यसभा हैज वेरी लेस पावर्स इन मनी बिल। अगर मनी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने को, तो मनी बिल के सिनारियो में प्रेसिडेंट बिल को लौटा भी नहीं सकता और अपना एसेंट विथहोल्ड भी नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन अ मनी बिल। अब लेकिन अगर हम फाइनेंशियल बिल या ऑर्डिनरी बिल की बात करें, इन दिस काइंड ऑफ बिल्स प्रेसिडेंट के पास पूरा पूरा राइट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो साइन कर भी सकता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो अपना कंसेंट विथहोल्ड भी कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या है? अगर ये जो मैं कह रहा हूं प्रेसिडेंट चाहे तो साइन नहीं कर सकता है, तो क्या बिल पास नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज दैट प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट ओनली वंस, कि प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, प्रेसिडेंट क्या करेगा? कुछ रिकमेंडेशंस और चेंजेस रिकमेंड करेगा और बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज देगा रिकंसिडरेशन के लिए। बट प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशंस देता है ये पार्लियामेंट में बाइंडिंग नहीं होती। पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट के बोले हुए चेंजेस कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। और अगर ये बिल पार्लियामेंट से दोबारा प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए वापस आ गया सेकेंड टाइम, देन सेकेंड टाइम पे प्रेसिडेंट और अपना एसेंट विथहोल्ड नहीं कर सकता, ही इज बाउंड टू साइन इट, ठीक है। और जब तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं कि बिल एक हाउस में पास हुआ, बिल दूसरे हाउस में पास हुआ, बिल फिर प्रेसिडेंट से साइन भी हो गया, आफ्टर दिस द बिल बिकम्स एन, व्हाट इज एन एक्ट? एन एक्ट इज नथिंग बट अ लॉ, कानून। When we have something called an ordinance, let's have a look. Now, what is an ordinance? So, President can promulgate an ordinance on the advice of the Council of Ministers when both the houses of the Parliament are not in session. It is mentioned. Ordinance का जो ये प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, ये चीज आर्टिकल 123 में मेंशन है। ऑर्डिनेंस है क्या वो समझते हैं। हमने कल देखा था कि देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अगर आप टाइमलाइन देखोगे इनका, यू विल नोटिस कि इन सेशंस में बीच में कुछ कुछ 1-2 महीने का गैप रहता है। तो ये 1-2 महीने के गैप में क्या होता है? पार्लियामेंट बंद रहता है, द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, अब देखो अगर देश के लिए कोई भी लॉ बनाना है, देश के लिए कोई भी कानून बनाना है, तो वो पार्लियामेंट में ही बनेगा, और उसके लिए पार्लियामेंट को सेशन में होना पड़ेगा। नाउ इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो लॉ कैसे पास होगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू पास अ लॉ। बट मान लो देश में कोई इमरजेंसी आ गई, अभी इमीडिएटली एक लॉ पास करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे फिर? पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बट वी नीड अ लॉ, इट इज एन इमरजेंसी, उस टाइम क्या करेंगे फिर? इसका एक ही जवाब है, उस टाइम ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस इज समवॉट लाइक अ टेम्पररी लॉ। जब तक पार्लियामेंट वापस सेशन में नहीं आ जाता, तब तक ये ऑर्डिनेंस काम में रहेगा। एंड हु प्रोमलगेट्स द ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस को सामने लाता कौन है? ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट इज इट बाय द ओन विश ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं। प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से रिटन एडवाइस आता है दैट प्लीज प्रोमलगेट दिस ऑर्डिनेंस टिल द पार्लियामेंट इज बैक इन सेशन नेक्स्ट टाइम, प्रेसिडेंट उनके एडवाइस पे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन। एंड एज आई सेड, ऑर्डिनेंस एक नॉर्मल लॉ ही है, जस्ट लाइक एन एक्ट, बट द डिफरेंस इज दैट एन एक्ट इज अ परमानेंट लॉ, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। अब ऑर्डिनेंस बनता कैसे है?
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साथ में बैठ के ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद उस ड्राफ्ट को कैबिनेट के पास भेजा जाता है। अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, देन वो ऑर्डिनेंस कैबिनेट से फॉरवर्ड होके जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको प्रोमलगेट करता है। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस किस किस मैटर पे आ सकता है, प्रेसिडेंट किस किस मैटर पे ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है? सी, पार्लियामेंट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वी हैव स्टडीड यस्टरडे कि पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, और पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स है ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, ये ऑर्डिनेंस आता क्यों है? अर्जेंसी के केस में आता है। मान लो कोई अर्जेंट मैटर हो गया देश में बहुत बड़ा, और उस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए एक टेम्पररी लॉ या ऑर्डिनेंस लाया जाता है। नाउ, एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ टाइम कितना होता है? लेट्स हैव अ लुक। ठीक है। देखो, मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं, और देश में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, because of which, on the advice of the council of ministers, the president promulgated an ordinance. So now what will happen? अब मान लो कि वो ऑर्डिनेंस रहा, अब एक दो महीने बाद पार्लियामेंट इज नाउ बैक इन सेशन। तो जिस दिन पार्लियामेंट सेशन में वापस आया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, बिगिनिंग डे से लेके अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 हफ्ते मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 months, एज्यूमिंग कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो विद इन नेक्स्ट 1.5 months या फिर विद इन द नेक्स्ट 6 weeks आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास दो चॉइस है कि सेशन में आने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो टेम्पररी ऑर्डिनेंस बना था उसको एक परमानेंट लॉ बना दो, और नहीं तो अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको परमानेंट लॉ के जैसे, परमानेंट बिल के जैसे पास नहीं किया, तो फिर 6 हफ्ते के बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस और नहीं रहेगा। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कल? हमारे पार्लियामेंट का एक नियम है कि हमारे पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। द गैप बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 months। तो एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ कितना हो सकता है? मान लो 6 महीने का पार्लियामेंट का मैक्सिमम गैप पॉसिबल इज 6 months, और 6 months बाद जब पार्लियामेंट खुलेगा, तो 6 months बाद पार्लियामेंट खुलने के बाद विद इन 6 weeks उस ऑर्डिनेंस को या तो परमानेंट लॉ बना देना है, और नहीं तो 6 weeks बाद वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने का सेशंस का गैप, और खुलने के बाद 6 हफ्ते का टाइम फ्रेम, तो 6 months and 6 weeks, which is approximately 7.5 months. 7.5 months is the टोटल लाइफ और द हाईएस्ट लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस जो रह सकता है। अगर ऑर्डिनेंस को प्रॉपर नॉर्मल परमानेंट लॉ में कन्वर्ट नहीं किया, तो मैक्सिमम 7.5 months इज द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्डिनेंस। और मान लो कि सेशन दोबारा खत्म हो गया और उस लॉ का फिर से जरूरत पड़ गया, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सेशन खत्म होने के बाद वही सेम ऑर्डिनेंस एन नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रोमलगेट कर सकता है। एक ऑर्डिनेंस था, पार्लियामेंट खुला, 6 हफ्ते बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, अब पार्लियामेंट का फिर से बंद हो जाएगा वो अगले सेशन तक। अगले सेशन तक जब फिर पार्लियामेंट फिर बंद होगा, उस टाइम अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सेम ऑर्डिनेंस दोबारा एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे उसको वो रिप्रोमलगेट कर सकता है, बट उसके लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस और परमिशन चाहिए हो। ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारे देश के जो फाइनेंसेस है, हमारे देश का जो पैसा है, उसको पार्लियामेंट कैसे एडमिनिस्टर करता है? क्योंकि पैसे को बचाने के लिए, पैसा हैंडल करने के लिए भी लॉ चाहिए, पैसा हैंडल करने के लिए भी कानून चाहिए। तो हाउ विल द पार्लियामेंट हैंडल दैट? ठीक है। हमारे देश के आप लोग न्यूज में देखते होंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड बजट, जो गवर्नमेंट हर साल बनाती है, कि देश में कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, सरकार के पास से कितना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, पैसा आने में और पैसा जाने में गैप कितना है, सरकार को प्रॉफिट या सरकार को डेफिशिएट कितना हो रहा है, ये सब चीजें बजट में होती है। ठीक है। तो बाय यूजिंग द बजट, बजट के थ्रू पार्लियामेंट हमारे देश के फाइनेंसेस को एडमिनिस्टर करता है, हैंडल करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो टर्म है बजट,
बजट बोल के कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. देयर इज नो मेंशन or any explicit mention of a term budget in our constitution. Rather, in our constitution, in article 112, there is a mention of something called as an annual financial statement. उस annual financial statement को ही हम common language में budget बोलते हैं. Then हमने पहले पढ़ा था that parliament is a custodian of the CFI, Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India क्या है? सरकार को जो भी रेवेन्यू आता है, ठीक है, या फिर अगर सरकार ने किसी को लोन दिया था और वो जिसको भी लोन दिया था सरकार ने, दैट पर्सन रीपेड द लोन बैक टू द गवर्नमेंट. तो लोन जब रीपे करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा वापस मिलेगा, आमदनी होगा गवर्नमेंट का. और सरकार को जो भी रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू यानी सरकार जो भी पैसा कमाता है, whether through tax, fees, fine, stamp paper, duties, this, that, anything. These all things come under revenue. सरकार को जो भी रेवेन्यू मिलता है, या फिर सरकार को जो भी लोन्स मिलते हैं, या फिर लोन सरकार को कोई चुका के लौटाता है, ये जो भी पैसा सरकार को आ रहा है, ऑल दैट मनी गोज इनटू द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. और सीएफआई का कस्टडियन कौन है? इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, पार्लियामेंट में एक एक्ट या रेजोल्यूशन बिना पास किए आप कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा भी नहीं उठा सकते. व्हेन वी हैव पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा जा रहा है, उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या जाता है? सरकार के रेवेन्यूज जाते हैं और सरकार को रिपेमेंट से जो भी लोन वापस मिलता है वो जाता है. इन सब के अलावा जो बाकी पब्लिक का पैसा है, ऑल दैट मनी गोज इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं है. पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का कस्टोडियन है एग्जीक्यूटिव. हु इज द एग्जीक्यूटिव? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर द वाइस प्रेसिडेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो वो पैसा निकल जाता है. उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए. पार्लियामेंट का अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए चाहिए. एंड कैसा कैसा पैसा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में? प्रोविडेंट फंड, लोगों के नौकरी से जो पीएफ का पैसा कटता है, जुडिशियल डिपॉजिट्स, सेविंग्स बैंक में जो हम पैसा रखते हैं, या फिर बाहर से जो रेमिटेंसेस आते हैं कि कोई काम करता है वो बाहर से पैसे भेज रहा है अपने घर में, देश में, दीज थिंग्स गो इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. ठीक है. Then we have something called the contingency fund of India. देखो, contingency fund of India is not a constitutional fund. ठीक है. नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कोई मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो ये फंड बना कैसे? इट वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950. That is why it is a statutory fund. See the word statute. The word statute means a law. So basically, to create a body or to create a fund or to create anything, if you pass a formal law, अगर किसी भी चीज को बनाने के लिए तुम अलग से एक लॉ बनाते हो, then we say that it is a statutory thing. इस फंड को बनाने के लिए एक लॉ को पास किया गया है, मतलब इसके पीछे एक लीगल बैकिंग. Because of that, this fund is called as a statutory fund. Because it has a statute behind it. It has a law behind it. But it is non-constitutional. Why? Because it is not mentioned in our constitution. इसका नाम है ही नहीं संविधान में लिखा हुआ. And who's the custodian of contingency fund? It is the president of India. प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना यहाँ से एक पैसा भी नहीं निकलता. बट क्या प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी है? नहीं. प्रेसिडेंट को यहाँ से पैसा देना है या नहीं देना है, ये एडवाइस उसको प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलता है. देखो, द वर्ड कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी. कंटिजेंसी मींस इमरजेंसी. ठीक है. तो कभी भी अगर देश में कोई इमरजेंसी हो गया खतरनाक और सरकार को इमरजेंसी के लिए पैसे का जरूरत पड़े, इन दैट केस सरकार कंटिजेंसी फंड से पैसे निकालती. अब मान लो कि सरकार को अचानक से 2 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी का जरूरत पड़ी है.
तो सरकार इमरजेंसी में क्या करेगी, 2 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल लेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या, क्योंकि ये क्या हो, क्यों ये होता क्यों है, क्योंकि देखो अगर अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना एक पैसा भी नहीं निकलेगा। और जब पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस अप्रूवल देंगे इसको लेके, जब तक कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने का अप्रूवल पार्लियामेंट से मिलेगा, तब तक इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बिल पे डिस्कशन होगा, ये होगा वो होगा, तब तक बहुत डिले हो जाएगा। एंड इन एन इमरजेंसी सिचुएशन यू कैनॉट वेट कि मैं पार्लियामेंट में डिस्कस करके बिल पास करके फिर कंटिजेंसी फिर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालूंगा, यू कैनॉट वेट फॉर दैट। तो होता क्या है, मान लो 2 करोड़ रुपए का सरकार को एक इमरजेंसी जरूरत पड़ी है, अब जब तक 2 करोड़ रुपए पार्लियामेंट में डिस्कस होकर कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सरकार क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करके प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगा और 2 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड से निकाल लेगा टू सॉल्व द इमरजेंसी। और उसके बाद आस्ते धीरे आराम से वो क्या करेगा, पार्लियामेंट में अप्रूवल लेगा कि अब वो 2 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड से निकालता, और कंसोलिडेटेड फंड से 2 करोड़ रुपए निकाल के जो भी 2 करोड़ खर्चा हुआ था कंटिजेंसी फंड में, उसको वहां वापस डाल देगा, ठीक है। सो बेसिकली वॉट एवर अमाउंट द गवर्नमेंट स्पेंड्स इन इमरजेंसी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, द सेम अमाउंट द गवर्नमेंट विल डिपॉजिट बैक फ्रॉम द कंसोलिडेटेड। बेसिकली अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट कंटिजेंसी फंड से निकालती है इमरजेंसी में, एक्स अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट बाद में कंसोलिडेटेड फंड से लेके कंटिजेंसी फंड में रख देगी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर। व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर? देखो, सरकार के जो भी खर्चे होते हैं, that is known as expenditure. Even for us, whatever money we spend from our pocket, that is known as the expenditure. So whatever money the government is also spending from its own pocket, that is the expenditure of the government. और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से निकालेगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेगा। इन अ नॉर्मल सिनेरियो, ऑफ कोर्स इमरजेंसी हो गया, देन इट विल गो टू द कंटिजेंसी फंड, इट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि पैसा क्या, नियम क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो उसका नियम क्या है, उसको पार्लियामेंट में अप्रूव होना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में अप्रूवल कैसे मिलता है, वोटिंग से। कि अगर सरकार को एक्सपेंडिचर के लिए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट को बेसिकली पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू मेजोरिटी मिलके अप्रूवल लेना होगा कि हाँ मैंने मेजोरिटी मिल गया मेरे को डिसीजन का पार्लियामेंट में, अब मैं कॉन्सोलिडेटेड फंड से 100 करोड़ रुपए निकाल सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली वोटिंग से डिसाइड होता है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकलेगा। लेकिन जो सरकारी ऑफिसर्स है, द सुप्रीम कोर्ट जज, द हाई कोर्ट जज, द अटॉर्नी जनरल, ठीक है, देन द सॉलिसिटर जनरल, द कैबिनेट सेक्रेटरी, द डिफरेंट आईएएस ऑफिसर्स, इनका जो सैलरी है इस पे वोटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। इन इस पे वोटिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है, यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी के मेंबर्स, लोकसभा का स्पीकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस। तुम्हें नहीं लगता कि अगर पार्लियामेंट को राइट मिल गया उनके सैलरी पे वोट करने का, तो ये लोग कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दबाव में आ जाएंगे कि पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट वोट करके हमारी सैलरी कम कर देगा। बट दीज बॉडीज आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, दैट इज वाई इन इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स का जो सैलरी होता है इस पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। देयर सैलरीज आर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कि इनको इतना ही सैलरी मिलेगा पर वोटिंग करके उसको तुम कम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, ताकि इन ऑफिसर्स पे पार्लियामेंट का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना बन, ठीक है, दैट इज द रीजन। और ये जो एक्सपेंडिचर है जिसपे पार्लियामेंट वोट नहीं कर पा रही है, जो प्री डिसाइडेड है इन ऑफिसर्स के लिए, सच एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स, और एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। और जो एक्सपेंडिचर्स पे वोटिंग होता है और वोटिंग के बाद डिसाइड होता है कितना पैसा निकलेगा, those expenditures are known as expenditures made on the consolidated. Now let's look at some devices of parliamentary proceedings. देखो पार्लियामेंट में जो भी होता है, जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, वट एवर हैपेंस इन द पार्लियामेंट, इट डज नॉट हैपन रैंडमली।
कुछ कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही पार्लियामेंट का काम हो पाता है। ठीक है, उसको फॉलो करके ही पार्लियामेंट का काम हो पाता है। फर्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, ये जो क्वेश्चन आवर चीज है, दिस क्वेश्चन आवर इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट ये होता है फिर भी पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, पार्लियामेंट का जब भी सिटिंग होता है, जब पार्लियामेंट में बैठक होता है कभी भी, तो दिन का जो पहला आवर होता है, द फर्स्ट आवर, दैट इज नोन एज द क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर में बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं एक दूसरे से। ऑपोजिशन सरकार से सवाल पूछेगी, सरकार ऑपोजिशन से सवाल पूछेगी। ठीक है, अब तीन टाइप के सवाल होते हैं। पहला होता है स्टार्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चंस में ऐसा एक एस्ट्रिक साइन लगा के देते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और स्टार्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम ओरली दे सकते हो, कि किसी ने सवाल पूछा तुम मुंह से आंसर दे सकते हो। फिर उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब किसी ने मेरे से एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा, मैं चाहूं तो मुंह से जवाब दे सकता हूं, बट मेरे जवाब देने के बाद वो रिटर्न में फिर से अगर सेटिस्फाइड ना हो मेरे जवाब से, वो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी और दे सकता है मेरे को, कि नहीं बताओ फिर ये कैसे हो। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन में ये एस्ट्रिक साइन नहीं लगाया जाता, और अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा रिटर्न में देना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि तुमने सवाल दे दिया, सवाल का जवाब देने के लिए जो दूसरा बंदा है जिसको सवाल किया है तुमने, दैट पर्सन विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड एक और चीज, सवाल पूछने के बाद क्वेश्चन आवर में अगर कोई किसी से सवाल करता है, देन आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हर केस में एक नोटिस टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि पूछ लिया तो अभी बोल, अभी पूछा है अभी के अभी बोल, नो, a certain notice time is given to answer back in all cases. Then we have something called as a zero hour. Zero hour हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है सिंस द ईयर 1962, और ये एक ऐसा चीज है ना जो इंडिया में इनोवेट हुआ है। इट वाज नॉट देयर इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया, दिस थिंग हैज बीन इनोवेटेड इन इंडिया ओनली। ठीक है, अब क्वेश्चन आवर में क्या हो रहा था, क्वेश्चन आवर में एक नोटिस दिया जा रहा था कि हाँ मैं तुमसे ये सवाल करने वाला हूँ, ये मेरा सवाल है, ये सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ, तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा, नोटिस इज बीइंग गिवन। बट जीरो आवर में क्या होता है, जीरो आवर में बिना नोटिस के अचानक से अचंका सवाल पूछ दिया जाता है कि हाँ बताओ अभी बताओ, लाइक इन लाइक अ सरप्राइज सडन क्वेश्चन। ठीक है, और जीरो आवर होता कब है, देखो, जो फर्स्ट आवर है सिटिंग का वो क्वेश्चन आवर है, और उसके बाद पार्लियामेंट का एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब कि आज किस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, वो पार्लियामेंट का एजेंडा है। तो क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है, दैट इज द टाइम व्हेन जीरो आवर टेक्स प्लेस। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मोशंस। ठीक है, मोशन मींस द ओपिनियन ऑफ द हाउस। ओपिनियन ऑफ द हाउस मतलब कि जो पूरा हाउस बैठा हुआ है, द हाउस दैट इज सिटिंग करेंटली, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द हाउस एट दैट टाइम, व्हाट डज द हाउस बिलीव, दैट द हाउस बिलीव्स दैट सो एंड सो इज द करेक्ट थिंग एंड सो एंड सो इज द इनकरेक्ट थिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज अ मोशन, कि ये हाउस मानता है कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए या फिर ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मोशंस तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है, स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, सब्सटेंसिव मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो एक यूनिक चीज है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर मोशन। ये खुद ही में एक खुद का मैटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार को गिराओ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, डू यू थिंक दीज मोशंस आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मोशंस? दे आर नॉट। दीज मोशंस आर कंप्लीटली एक्सप्लिसिट, मतलब ये प्रॉपर यूनिक एक अलग ही टॉपिक है ये। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ मोशंस आर नोन एज सब्सटैंशिव मोशंस। देन वी हैव सब्स्टिट्यूट मोशंस। सब्स्टिट्यूट मोशंस क्या होता है कि जो भी मोशन डिस्कस हो रहा है, ठीक है, उस मोशन की जगह अगर एक दूसरा मोशन डिस्कस करने का प्रपोजल दिया जाए। सब्स्टिट्यूट क्या है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलते खेलते देखना अचानक से एक बंदा बाहर बैठता है, और जो ओरिजिनल प्लेइंग 11 था उसका एक बंदा बाहर बैठता है, दूसरा बंदा बेंच से जाके खेलने लगता है। तो सब्स्टिट्यूट मोशन इज द सेम थिंग, कि ओरिजिनल मोशन की जगह
एज ए सब्सटीट्यूट दूसरे मोशन को प्रपोज किया जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन इज बेसिकली समथिंग, ऐसा मोशन जो किसी और मोशन पे डिपेंडेंट, मतलब ऐसा मोशन जो दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट हो, उस टॉपिक के बिना ये मोशन का कोई वैल्यू नहीं। अब सब्सिडियरी मोशन के कुछ टाइप्स देखते हैं। सब्सिडियरी मोशंस के कुछ टाइप्स देखते हैं। सब्सिडियरी मोशन पहला टाइप है एंसिलरी मोशन, ठीक है। एंसिलरी मोशन क्या है? मान लो जो हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, हाउस में कोई पेंडिंग बिजनेस है, मतलब ऐसा कोई काम है हाउस में जो पेंडिंग है, हुआ नहीं, अभी तक रुका हुआ है। तो पेंडिंग बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई मोशन रेस किया जाए, दैट इज नोन एज एन एंसिलरी मोशन। दूसरा, वी हैव समथिंग कॉल्ड सुपरसीडिंग मोशन। मतलब एक मोशन है, उसको तुमने एक दूसरे मोशन से रिप्लेस कर दिया, सच अ मोशन इज कॉल्ड अ सुपरसीडिंग मोशन। फिर अमेंडमेंट मोशन, मतलब एक मोशन पे डिस्कशन हो रहा था, बट तुम सोच रहे हो कि ये मोशन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, इस मोशन में कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो मोशन में चेंज करने के लिए जो दूसरा मोशन लाओगे, दैट इज कॉल्ड एज एन अमेंडमेंट मोशन। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एन एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस, ठीक है। देखो, एडजर्नमेंट मोशन ऐसा मोशन है ना, जो एक से ज्यादा टॉपिक को एक बार में डिस्कस नहीं कर सकता। कोई अगर दूसरा नॉर्मल मोशन है, सच अ मोशन कैन डिस्कवर मोर देन वन टॉपिक एट द सेम टाइम। एडजर्नमेंट मोशन एक टाइम पे एक टॉपिक से ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा मैटर है जो सेम सेशन में पहले डिस्कस हो चुका है, और तुम एडजर्नमेंट मोशन में वो ऑलरेडी डिस्कस हुआ चीज फिर से रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। इस बेसिकली लाइक कि रात गई बात की, अगर कोई डिस्कशन ऑलरेडी सेशन में हो चुका है, यू कैनॉट ब्रिंग अप द सेम टॉपिक अगेन इन एन एडजर्नमेंट मोशन। या फिर मान लो ऐसा कोई मैटर है जो अभी कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, इफ देर इज एनी मैटर विच इज अंडर द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, ऐसा कोई मैटर है देश में जिसका करेंटली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, ऐसा चीज जब तक कोर्ट उस पर सुनवाई ना कर दे, until and unless the court gives the judgment, such a matter cannot be discussed under an adjournment motion। और एडजर्नमेंट मोशन का मिनिमम डिबेट टाइम 2.5 घंटे का है। अगर एडजर्नमेंट मोशन लाना है तो लाओ, बट उस पर तुमको 2.5 घंटा डिबेट करना पड़ेगा, उससे कम में नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर एडजर्नमेंट मोशन हाउस में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेंशर हो जाएगा। व्हाट इज सेंशर? वी स्टडीड यस्टरडे। सेंशर मींस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल नो मोर हैव अ से इन एनीथिंग इन द पार्लियामेंट, उनका कोई ओपिनियन नहीं रहेगा। और सेंशर होते ही क्या होता है? सेंशर होने के बाद बेसिकली कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कोई नहीं मानने वाला। सेंशर होने के बाद क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो नो कॉन्फिडेंस से उसका सरकार गिर जाएगा। अब ऐसे मोशंस देखते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशन राज्यसभा में पास नहीं हो सकता। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आ सकता। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास हो प्रेजेंट हो सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्पीकर को सबमिट करना होता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम तभी स्पीकर को सबमिट कर सकते हो व्हेन इट इज साइंड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स। मतलब लोकसभा में एटलीस्ट 50 लोगों को उस पर साइन करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्पीकर को सबमिट हो सकता है। फिर आता है सेंशर मोशन। सेंशर मोशन मींस ऐसा मोशन जो पास करके तुम बेसिकली ये प्रूफ कर दोगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेकार है, आज से उनका कोई से है ही नहीं देश का पॉलिसी बनाने में, दे हैव नो रूल। एंड कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑपोजिट होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऑपोजिशन बेसिकली ये बोलती है कि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, सरकार का मेजोरिटी नहीं है, सरकार गिराओ। उसके रिटर्न में सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, बेसिकली फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कि नहीं, अभी भी हमारा मेजोरिटी है और हम सरकार बनाए रखेंगे। After motions we have something called resolution. Resolution means resolve of the house. Resolve of the house मतलब कि जो हाउस है उसने डिसाइड क्या किया, what have they resolved to do, you know कि like I have resolved that I will quit eating junk food from this year, ठीक है। like the resolve of the house कि जो हाउस है उसने बैठ के क्या रिजोल्यूशन लिया,
रिजॉल्व क्या किया, व्हाट डिड कम अप विथ एज अ सोल्यूशन, कि उनको करना क्या है। ठीक है, तो अब रेजोल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन अगेन ये ऐसा रेजोल्यूशन है जिसको कोई नॉन मिनिस्टर एमपी इंट्रोड्यूस करता है, ऐसा एमपी जो मिनिस्टर नहीं। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ये एक ऐसा एमपी इंट्रोड्यूस करेगा जो कि सरकार में मिनिस्टर भी। फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल गांधी एक रेजोल्यूशन लाता है, इट विल बी ए नॉन मिनिस्टर रेजोल्यूशन बिकॉज इज एन एमपी बट नॉट अ मिनिस्टर। बट on the other hand, agar S. Jaishankar brings up a resolution, it will be a government resolution. Why? Because he's a minister. He's the Minister of External Affairs. And then we have something called a statutory resolution, introduced in pursuance of a constitution or law passed by the parliament and can be introduced by both private member or minister. मान लो संविधान का कोई प्रोविजन है या फिर उसके संविधान के बाहर का कोई लॉ है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है ऑलरेडी। अगर पार्लियामेंट का पास किया हुआ कोई लॉ या फिर संविधान के अंदर के किसी प्रोविजन को परस्यू करने के लिए, उस पर फर्दर डिस्कस करने के लिए कोई रेजोल्यूशन लाया जाए, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन इज नोन एज अ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ठीक है, और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कोई मिनिस्टर भी सरकार से, गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस वाज इट फ्रॉम द चैप्टर ऑन यूनियन लेजिस्लेचर। इट वाज अ ह्यूज चैप्टर, आई नो। ठीक है, a lot of slides, lot of information. That is why precisely why it took two long classes to complete this chapter. But it's a very very important chapter. मैंने पहले भी बोला है, please go through both the videos. जरूरत पड़े तो rewind where you want to re-listen to the things. ठीक है, pause करो, slow करो speed को, जैसा आपको सही लगे. Please be very very conceptually clear about this chapter on union legislature. It is very very important. And polity as a whole is a very like high weightage thing in any UPSC exam. Earlier CDS and NDA used to have an easier paper. Now UPSC has gone to that extent. UPSC अब डिफरेंशिएशन रखता ही नहीं है। सिविल सर्विस हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स दे कम अप विद द ऑलमोस्ट लाइक सेम स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। इट्स बिकमिंग दैट कॉम्पिटिटिव। सो एंड और ये चैप्टर से तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, कोई भी एग्जाम दे दो यूपीएससी का, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। प्लीज गो थ्रू पीवाईक्यूज टू अंडरस्टैंड कि कौन से थीम्स और टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में एंड हाउ डू यू गो अबाउट। ठीक है, आई होप इट वाज एन हेल्पफुल सेशन फॉर यू ऑल। आप लोग को फायदा हुआ। ठीक है, आई विल सी यू ऑल अगेन इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।